નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક એવા મુદ્દે ચર્ચા કરવાના છીએ જેની અસર લગભગ સૌ કોઈને થાય. સવાર પડે તમે જાગો અને સરસ મજાની ગરમા ગરમ ચાનો કપ તમારા સામે આવે તો ગમે. બાળકને પોષણ માટે દૂધ જોઈએ. આમે સ્કૂલોમાં ભણાવાય કે દૂધ એ સંપૂર્ણ આહાર છે. આવા આ ક્ષેત્રની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. દર્શક મિત્રો, ભારત વિશ્વનું સૌથી મોટું દૂધ ઉત્પાદક દેશ છે. 1950-51માં આપણે પહેલી પંચવર્ષીય યોજના જ્યારે લખવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા ત્યારે 17 મિલિયન ટનથી શરૂ કરીને 2001માં 79.65 મિલિયન ટન અને 17-18માં 136.35 મિલિયન ટન, એટલે કે 67 વર્ષમાં ભારતનું દૂધ ઉત્પાદન લગભગ 11 ગણું વધ્યું છે. દુનિયાના પ્રથમ દૂધ ઉત્પાદક 10 દેશોમાં પહેલા નંબરે ભારત, ત્યારબાદ અમેરિકા, પછી ચીન, પાકિસ્તાન, બ્રાઝિલ, જર્મની, રશિયા, ફ્રાન્સ, ન્યુઝીલેન્ડ અને તર્કી આવે છે. ભારતના રાજ્યોમાં જોઈએ તો 2010-11ની સ્થિતિએ દેશનું 18.40% દૂધ ઉત્પાદન કરીને ઉત્તર પ્રદેશ પ્રથમ નંબરે, 10.86% સાથે રાજસ્થાન બીજા નંબરે, 9.19% સાથે આંધ્રપ્રદેશ ત્રીજા નંબરે, 7.73% સાથે પંજાબ ચોથા નંબરે, 7.65% સાથે ગુજરાત પાંચમા નંબરે, 7.01% સાથે મધ્યપ્રદેશ છઠ્ઠા નંબરે, 6.62% સાથે બિહાર સાતમા નંબરે, 6.60% સાથે મહારાષ્ટ્ર આઠમા નંબરે, 5.14% સાથે હરિયાણા નવમા નંબરે અને 4.2% સાથે કર્ણાટક 10મા નંબરે આવે છે. આમ દેશના ઉત્પાદનમાં ઉત્તર પ્રદેશ પહેલા નંબરે, રાજસ્થાન બીજા નંબરે છે, જ્યારે ત્રીજા નંબરે આંધ્રપ્રદેશ, ચોથા નંબરે પંજાબ અને ગુજરાત પાંચમા નંબરે આવે છે. 2018-19માં દેશનું દૂધ ઉત્પાદન 18.77 કરોડ થયું. એ 18.77 કરોડ ટનની સાથોસાથ 1991-92માં માથાદીઠ દૂધની પ્રાપ્તિ 178 ગ્રામ પ્રતિ દિવસ હતી. તે લગભગ બમણાથી સહેજ વધાર થઈને 394 ગ્રામ પ્રતિ દિવસ સુધી પહોંચી. દેશના દૂધ ઉત્પાદનને વેગ આપવામાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રેરણાથી શ્રી ત્રિભુવનદાસ પટેલ અને ડોક્ટર કુરિયનની જોડીએ અમૂલનો પાયો નાખ્યો, અથવા તો ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘનો પાયો નાખ્યો, જે ભારતની શ્વેત ક્રાંતિમાં એક સીમારૂપ ચિહ્ન, એક સીમારૂપ સિદ્ધિ આગળ જતા બનવાની હતી. આજે દેશમાં ખેડૂત આંદોલનના માર્ગે છે. એનું મુખ્ય કારણ ખેડૂતને ખેત ઉત્પાદનોના પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી તે છે. ખેતી એક જ એવી ઉત્પાદન વ્યવસ્થા છે કે જેમાં ઉત્પાદન એટલે કે ખેડૂત પોતાના ઉત્પાદનનો ભાવ નક્કી નથી કરતો, પણ એ ભાવ બજારમાં વેપારી નક્કી કરે છે, આડતિયાઓ નક્કી કરે છે. આને કારણે ખેતીની પેદાશો આધારિત આટો, મેંદો, રવો કે અન્ય મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોનો નફો ખેડૂતના હાથમાં નહીં જતા વચેટિયા વ્યવસ્થાના હાથમાં જાય છે. સહકારી દૂધ ઉત્પાદન વ્યવસ્થા થકી દૂધનો ઉત્પાદક પોતે જ પોતાના ઉત્પાદનને પ્રોસેસ પણ કરે છે અને એમાંથી બનતા માખણ, ચીઝ, આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ વગેરે અનેક મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનો થકી નફો રળવામાં ભાગીદાર પણ બને છે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઉત્પાદન કરવું હોય તો ઉત્પાદક દ્વારા ગુણવત્તા અને પ્રમોશન બંનેને કારણે જે બ્રાન્ડ ઇક્વિટી ઊભી થાય છે તે વગર ખાદ્ય પદાર્થ બજારમાં સ્વીકૃતિ પામતો નથી. આમ કરવું હોય તો એક સુઆયોજિત પ્રોક્યોરમેન્ટ એટલે કે ઉપલબ્ધિ વ્યવસ્થા, ઉચ્ચ ટેકનોલોજી આધારિત ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદનો બનાવવા માટેની ઉત્પાદન વ્યવસ્થા અને કાચા માલની પ્રાપ્તિના તબક્કે અથવા તૈયાર માલ ગ્રાહક સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં કોઈ જગ્યાએ એની ગુણવત્તા ન જોખમાય
તેવી કાચા માલની પ્રાપ્તિથી સ્ટોરેજ, પ્રોસેસિંગ, તૈયાર માલની સ્ટોરેજ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વ્યવસ્થા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલો જ અગત્યનો ભાગ પેકેજિંગ, પ્રાઇસ અને પ્રમોશન ભજવે છે. વર્ષોની જહેમત બાદ આ બધા મોરચે જે સફળ રહીને આજે ગુજરાતના મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ યુનિયનના નેજા હેઠળ અમૂલ તરીકે વેચાતું દૂધ અને તેના ઉત્પાદનો બજારમાં છવાઈ ગયા છે. એક જમાનામાં કોઈને મસ્કો મારવો હોય કે ખુશામત કરવી હોય તો એના પર્યાયરૂપ શબ્દ પોલ્સન મારવું એવો હતો. તે આજે ઇતિહાસમાં સમાઈ ગયો છે. આજની જે પેઢી છે એને પોલ્સન મારવું એનો અર્થ પણ કદાચ ખબર નહીં હોય. અને અમૂલ દૂધ પીતા હૈ ઇન્ડિયા અથવા અટરલી બટરલી અમૂલ છવાઈ ગયું છે. આ પ્રયોગની સફળતાએ નાનામાં નાના દૂધ ઉત્પાદકને પોષણક્ષમ ભાવ અપાવ્યા છે. પશુપાલનના ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે બહેનો રોકાયેલી છે. આ પ્રવૃત્તિએ બહેનોને સ્વાવલંબી બનાવીને આવક ઊભી કરી આર્થિક પ્રવૃત્તિની સંચાલિકા બનાવી છે. 2 કે 4 ઢોર રાખતી એક વિધવા બેન પોતાના બાળકો ઉછેરે, ભણાવે, ગણાવે ને પરણાવી શકે ત્યાં સુધી મગરૂબીથી પોતાના વ્યવહારો નિભાવવાની આર્થિક સક્ષમતા સહકારી દૂધ વ્યવસ્થાએ આપી છે. આ વ્યવસ્થાએ ગુજરાતને મિલ્ક સિટી ઓફ ઇન્ડિયા આણંદ આપ્યું છે. સરદાર પટેલ, ત્રિભુવનદાસ, કુરિયન અને દલાયા જેવા પ્રતિબદ્ધ અને દ્રષ્ટિવંત આગેવાનો થકી વૈશ્વિક કક્ષાની વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા આપી છે. ઢોરના ખાણથી માંડી એનું આરોગ્ય અને સારવાર તેમજ કૃત્રિમ બીજદાનથી માંડી ઉત્તમ ઔલાદના દૂધાળા ઢોર મળી રહે તેવી અનેક આખી વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરી આપી છે. આઝાદી પછી તરત જ ચકલાસીમાં સરદાર પટેલના આદેશથી દૂધ ઉત્પાદકોની સભામાં હાજર રહેલા મોરારજી દેસાઈએ ત્રિભુવનદાસ પટેલને તેમની કોઈ જ માગણી નહીં હોવા છતાં એક ઝવેરી હીરાને પારખે તે રીતે ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘના પ્રમુખ થવા માટે આદેશ કરીને પ્રવૃત્ત કર્યા. વિદેશથી મળીને આવેલ આણંદની ખખડધજ સરકારી ક્રેમરીમાં મુકાયેલ ડોક્ટર કુરિયન આણંદ આવ્યા અને જે રેઢિયાળ વ્યવસ્થામાં તેમને કામ કરવાનું હતું તેનાથી કંટાળીને મારી પાસે કામ જ નથી તો પગાર કઈ રીતે લેવાય એમ કહી ભારત સરકારને પોતાનું રાજીનામું એક કરતા વધુ વખત મોકલી દેનાર કુરિયન જ્યારે રાજીનામું મંજૂર થયું ત્યારે જતા જતા ત્રિભુવનદાસને મળવા ગયા ત્યારે એમણે કુરિયન પાસે માત્ર 6 મહિના પોતાની સાથે કામ કરવા માંગણી કરી. એમને રોકી લીધા. ઉછીના લીધેલા 50,000 રૂપિયામાંથી પ્રેશરાઇઝર મશીન ખરીદાયું અને તેમાંથી શરૂ થઈ અમૂલની સફળતાની એક અદ્ભુત દાસ્તાન. કુરિયન અને ત્રિભુવનદાસની જુગલજોડીએ ભારતની સહકારી દૂધ વ્યવસ્થાપન માટેની પહેલને સફળ બનાવી. ઓપરેશન ફ્લડ આપ્યું અને અમૂલ જેવી અબજો રૂપિયાની બ્રાન્ડ આપી. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો દૂધ અને દૂધના ઉત્પાદનોનો ઉદ્યોગ આપ્યો. એ સહકારી દૂધ ઉદ્યોગ સફળ એટલા માટે થયો કે એને ત્રિભુવનદાસ, કુરિયન, દલાયા, અમૃતા પટેલ જેવા સમર્પિત અને કાર્યદક્ષ વ્યાવસાયિકો અને નેતાઓનું નેતૃત્વ મળ્યું. આજે એશિયાની સૌથી મોટામાં મોટી દૂધ પ્રોસેસિંગ ડેરી ગુજરાતમાં છે એનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ. અને આમ છતાંય ભારત રિજિયનલ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ RCEPનું સભ્ય ન બન્યું કારણ કે દૂધ ઉત્પાદકોને ભય હતો કે જો આમ થયું હોત તો ન્યુઝીલેન્ડનું દૂધ ઉત્પાદન અહીંયા ઠલવાત અને એવા ભાવે ઠલવાત કે ભારતનો દૂધ ઉત્પાદક બરબાદ થઈ જાત. દુનિયાનો પહેલા નંબરનો દૂધ ઉત્પાદક દેશ અને એના ઉત્પાદકો દુનિયાના 9મા નંબરના દૂધ ઉત્પાદક દેશની હરીફાઈના કારણે સાફ થઈ જઈશું એવો ભય અનુભવે એ સ્થિતિનું નિર્માણ કેમ થયું હશે. આજે ભારતનો અને ગુજરાતનો સહકારી દૂધ ઉદ્યોગ એક એવા તબક્કે આવીને ઉભો છે જ્યારે ગુજરાતની વાત કરીએ તો એને તલાશ છે ત્રિભુવનદાસ, કુરિયન, અમૃતાબેન, દલાયા, માનસી પટેલ, ગલબાભાઈ પટેલ, મોટીભાઈ ચૌધરી કે અમીચંદ પટેલ જેવા અણિશુદ્ધ પરિશુદ્ધ નેતૃત્વની. દૂધ ઉત્પાદકોના નેતા તરીકે શ્વેત દૂધ અને શ્વેત ક્રાંતિ જેટલી જ દાગ વગરની અને નિષ્કલંક કારકિર્દી ધરાવતું આ નેતૃત્વ એમ માનતું હતું કે છાણ મૂતર ઉપાડીને ઢોર ઉછેરતી પેલી કોઈક વિધવા બહેન કે ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા 2 ટંકના રોટલા માટે ઢોર ઉછેરને પોતાનો વ્યવસાય બનાવી દૂધ ભરતા વંચિતોના પોતે પ્રતિનિધિ છે. પોતે દૂધસાગર કે બનાસ કે સાબર અથવા અમૂલ જેવી સમૃદ્ધ સંસ્થાઓના ચેરમેન નહીં પણ વંચિતોના વાણોતર છે. તે ભાવના આજે ક્યાંક નંદવાઈ છે. ચર્ચા કરવી છે આ બધા મુદ્દાઓની.
ચર્ચા કરવી છે ભારતના દૂધ ઉત્પાદકોની, ચર્ચા કરવી છે હવે પછીના સમયમાં શ્વેત ક્રાંતિ જેવી જ કોઈ નવી ક્રાંતિની ચર્ચા કરવી છે। આ બધું આગળ ધપાવે તેવા દમદાર નેતૃત્વની અને સહકારી વ્યવસ્થામાં એ નેતૃત્વ ઊભું થવામાં જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને લાગેલ સડાની ચર્ચા કરવી છે। રિજિયોનલ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપથી ન ગભરાય અને દેશના દૂધ ઉત્પાદકોને વૈશ્વિક ફલક પર ઊભા કરી દઈ શકે તેવા કુરિયન અને દલાયા જેવા વ્યાવસાયિક નેતૃત્વની ઘણી બધી વાતો કરવી છે અને એ માટે આપણી પાસે એક દમદાર પેનલ છે। પ્રોફેસર અનિલ ગુપ્તા એ આપણા માટે કોઈ નવું નામ નથી। આઈઆઈએમ અમદાવાદ અને આઈઆઈટી મુંબઈના ગુપ્તા સાહેબ વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી મેમ્બર છે। ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ માટે કામ કરે છે। ખેડૂતો અને પશુપાલકોના મુદ્દાઓની ઊંડી સમજ ધરાવે છે। ડેરી સેક્ટરમાં લેટેસ્ટ ચેન્જીસ અને અપડેટ્સના તેઓ જાણકાર છે। તેમની સાથે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે ડોક્ટર આર.એસ. સોઢી, ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન લિમિટેડના ડોક્ટર સોઢી એ એક સક્ષમ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે। 38 વર્ષથી વધુનો સહકારી ડેરી સેક્ટરનો વ્યાપક અનુભવ ધરાવતા ડોક્ટર સોઢી એગ્રીકલ્ચરમાં બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી ધરાવે છે અને પ્રતિષ્ઠિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રૂરલ મેનેજમેન્ટ ઇરમાના પ્રથમ બેચના એ પૂર્વ વિદ્યાર્થી છે। આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી તરફથી ડોક્ટર સોઢીને એમણે કરેલ પ્રદાન બદલ માનદ ડોક્ટરેટની પદવી પણ મળી છે। ડોક્ટર સોઢીના નામથી આજે માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ ભારતમાં પણ દૂધ ઉદ્યોગ અથવા તો દૂધ સાથે સંકળાયેલ કોઈ પણ બાબતની જ્યારે ચર્ચા થતી હોય ત્યારે આ નામ ઘણી કેન્દ્ર સ્થાને રહીને ઘણી અગત્યની વાતો મૂકવા માટે અને અનુભવ પોતાનો શેર કરવા માટે દેશના સ્તરે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એક અગત્યનું નામ છે। શક્યતા છે અમારી સાથે જોડાશે શ્રીમાન મહેશભાઈ પટેલ, વરિષ્ઠ સહકારી આગેવાન, ક્રિફકો અને ઇફકોના મેમ્બર રહી ચૂક્યા છે। 19 જેટલી સહકારી સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા છે અને સાબર ડેરીના ચેરમેન અને ડિરેક્ટર પણ મહેશભાઈ રહી ચૂક્યા છે। એક અત્યંત સૌમ્ય સ્વભાવ અને સ્પષ્ટ પોતાની વાત મૂકી શકવાની ક્ષમતા ધરાવનાર મહેશભાઈ હજુ સુધી સ્ટુડિયોમાં પહોંચ્યા નથી। આશા રાખીએ ચર્ચા આગળ ધપે એ દરમિયાનમાં તેઓ અમારી સાથે જોડાઈ જશે। ગુપ્તા સાહેબ, शुरुआत महेशભાઈ આપ છો ત્યાં છો, આપ અહીં સ્ટુડિયોમાં આવવાના છો એવું મને કહેવામાં આવ્યું હતું। થેન્ક યુ વેરી મચ, યુ આર ધેર ઓન ધ સ્ક્રીન। આપ જોડાઈ ગયા છો એ આનંદની વાત છે અમારા માટે। અમે રાહ જોતા હતા આપની સ્ટુડિયોમાં, એમાં કંઈક ગેરસમજ થઈ હશે પણ આપ હાજર છો એ જ અમારા માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે। धन्यवाद, आप जोड़ाए एनो आनंद है। डॉक्टर सोढ़ी, आई वेलकम यू एज वेल। गुप्ता साहब, आप तो हमारे गुरु हैं और गुजरात समाचार टेलीविजन के दर्शकों के लिए आप हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं। आपका फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है। शुरुआत आपसे करेंगे गुप्ता साहब, आपने ये सेक्टर को देखा है, आप इस सेक्टर में कुछ नई जो इनिशिएटिव्स हो रही है छोटी मोटी इकाइयों की वजह से, उससे भी ज्ञात है। आप एक मोटे तौर पे गुजरात ने शुरुआत की वहां से लेकर सरदार पटेल का जो एक सूत्र था, उनका जो विचार था कि दूध उत्पादक जब तक अपना माल कब बेचना है और कौन सी कीमत पे बेचना है उसका हकदार नहीं बनेगा, तब तक उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। आज की व्यवस्था ने वो सरदार पटेल की जो दृष्टि थी उसके अनुरूप काम करके दूध उत्पादक को खुद का मालिक बनाया है और खुद का नसीब तय करने वाला भी बनाया है। क्या कहना है आपको इस क्षेत्र के लिए साहब? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो उपलब्धियां हैं डेयरी सेक्टर की, उसमें 2 पहिए हैं इस गाड़ी के। एक पहिया है किसान, दूसरा पहिया है जो डेयरी के प्रोफेशनल हैं।
डॉक्टर सोडी और उनकी टीम जो है उसका प्रतिनिधित्व करती है, उन लोगों ने बहुत सेवा भाव से काम किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी 80% जो दूध का दाम उनको मिलता है उसका हिस्सा वो किसानों तक नहीं पहुंचा पाती हैं। हमारी क्लास में अक्सर आते हैं डॉक्टर सोडी, हर साल, इस साल अगले साल फिर बुला रहा हूं उनको जनवरी में, और वो बताते हैं कि यूरोप के अंदर इतनी संपन्नता है, इतना विकास हुआ है, लेकिन यूरोप की जो डेयरी है वो भी 40% से ज्यादा हिस्सा जो उनकी है माल का जो बिकता है जिस दाम पर, उस दाम का 40% से ज्यादा किसान को नहीं दे पाती। उनके ओवरहेड, उनके बाकी खर्चे इतने सारे होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा विश्वकरण का मापदंड बना दिया, मील का पत्थर बना दिया, बेंचमार्क बना दिया, जो बाकी सब देशों से दुगनी ज्यादा हिस्सा किसानों को देता है। और आज देखा जाए तो काफी हद तक जो अमूल मॉडल की 4-5-6 बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो ये बात है कि वो ज्यादा हिस्सा जो कीमत मिलती है उसका किसान तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात है कि आप सबको याद होगा जब शास्त्री जी आए थे और गांव में रहे, और वो कहानी सबने सुनी हुई है कि जब उन्होंने देखा कि हर जात के लोग एक ही बर्तन में दूध डालते हैं, तो उन्होंने बोला मेरा भारत ऐसा चाहिए मुझे, जिसके अंदर गरीब और अमीर, जिसके अंदर जाति का कोई भेद नहीं होगा, वर्ग का कोई भेद नहीं होगा। ऐसा समाज, ऐसा मिलजुल के चलने वाला समाज जो बनेगा तो वही हमें आगे चाहिए। और अमूल ने इस बारे में न केवल दूध में क्रांति की है, एक सामाजिक क्रांति का भी रूप इसके अंदर आया है, जिसमें सबको साथ लेकर, सबको साथ मिलाकर, कोई किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी कितनी भी छोटी जो उसके पास डेयरी की यूनिट हो या बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके समान अधिकार, सबके समान मौके, सबको समान प्रगति का अवसर मिला है। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अच्छी की है और जिसके अंदर जिसकी वजह से वो इतनी प्रगति पा ली है उन्होंने, कि उन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बहुत आगे बनाए। मुझे वो अक्सर बताते हैं सोडी जी की जब कुरियन साहब थे तो उस समय जब उन्होंने स्टेप डाउन किया, रिलीव किया, तो करीबन 8,000 करोड़ था। आज वो 50,000 और शायद अब 55,000 भी करोड़ हो गया हो तो बड़ी बात नहीं है। देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया वो। तो ये सब कैसे हुआ? ये लगातार कंटिन्यूअस इनोवेशन से हुआ। आयन की एक दीवार है जिसमें एक ही जगह पर सिर्फ दरार कहिए या जगह कहिए, और वो अमूल के लिए है। अमूल ने अपनी कियोस्क को सारे देश की जो उच्चतम सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी कलेक्ट्रेट हो, चाहे कैंट हो, चाहे IIM अहमदाबाद हो, चाहे और कोई दफ्तर, सबके साथ मिलकर उन्होंने 2 रास्ते बना दिए। एक वही जो हमारे कैंपस में रहते थे लोग उनको मिल जाए, और एक बाहर वाले लोग भी वहीं से दूध का और बाकी चीज और सब चीजों का प्रोडक्ट दे सकते। यानी इनोवेशन मार्केटिंग में किया, इनोवेशन प्रोडक्ट में किया। और आप सबको शायद पता होगा कि किस तरीके से उन्होंने विज्ञान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ किसी भी सेक्टर में। एग्रीकल्चर की समस्या एक कारण ये भी रहा कि जो टिकाऊ जब विज्ञान था, औद्योगिक विज्ञान था, उसका प्रयास कम हुआ। इनपुट की जो नॉलेज थी उसको काफी प्रयोग हुआ एग्रीकल्चर के, वैल्यू एडिशन कम हुआ, किसान के पास बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन के तरीके नहीं गए। जबकि अमूल के अंदर वैल्यू एडिशन के लिए CFTRI से टेक्नोलॉजी आई थी, भैंस के दूध के पाउडर की, और उसको उन्होंने इतना अच्छा आत्मसात कर लिया कि आज वो दुनिया के लीडर बन गए। तो अमूल की जो उपलब्धियां हैं वो खाली दूध की क्रांति तक नहीं है, खाली उसके उत्पाद की क्रांति तक नहीं है, उसकी कीमत तक नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट जो पैदा किया है पूरे संगठन ने पूरी उसकी जो कार्य क्षमता जो बनाई है अपने लोगों की, वो भी अद्भुत है। मेरी क्लास में कभी भी कोई विद्यार्थी आता था जिसने अमूल में काम किया है, तो उसका पैशन, उसका समर्पण की भावना देखते बनती थी कि वो कितने छोड़ने के बावजूद, अमूल को छोड़ने के बावजूद, उनके मन के अंदर जो सेवा भाव था, जो समर्पण की भावना थी, वो अटूट रहती है। तो अमूल ने एक बहुत बड़ा एक अनुशासित समर्पित भाव पैदा किया है अपने पूरे कर्मचारियों के अंदर, जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती होंगी, लेकिन फिर भी एक ऐसे संस्थान में। और एक और खास बात जो आज के संदर्भ में बड़ी जरूरी है, देश की राजनीतिज्ञों को सुनना चाहिए इस बात को। अमूल का बोर्ड है, उसके इलेक्शन होते हैं, उसमें राजनीतिज्ञ आते हैं, किसी पर अलग अलग पार्टी के आते हैं, लेकिन उन लोगों ने अमूल की जो निष्ठा है, जो इंटेग्रिटी है, एक आध अपवाद छोड़ दें हम, तो निष्ठा और इंटेग्रिटी पे कभी दखल नहीं दिया। अगर सोडी जी इतना सब नहीं कर पाते अगर बोर्ड का सपोर्ट नहीं होता, लेकिन बोर्ड का विश्वास उन्होंने जीता, उनकी पूरी टीम ने जीता, और इसका जो एक असर पड़ा है पूरे देश के मानस पर,
जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ा है। कि जब आप आपस में कुछ भी हमारे वाद विवाद हों, जब विकास की बात आती है, जब किसानों की सेवा की बात आए, उस समय हमें दो राय में बात नहीं करनी चाहिए, एक राय में बात करनी चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे पहले सबसे ऊपर किसान की जो हित में जो काम है उसको करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है मुल्क के अंदर, जिससे हमें सीखना चाहिए कि भाई आपसी विवाद चलेंगे, राजनीति में आपसी विवाद होने स्वाभाविक हैं, लेकिन उन विवादों का असर किसानों के हित पर नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी मत हो आपका, आप उसको माने, लेकिन व्यवस्था को चलने दें ठीक से, व्यवस्था के अंदर व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है। और अंत में ये कहूंगा कि आने वाले समय में बहुत अच्छा हुआ कि आरसीईपी में भारत ने शामिल नहीं हुआ, हालांकि इसके फायदे नुकसान दोनों थे, लेकिन डेयरी सेक्टर के लिए तो बहुत बड़ा एक आघात लगने वाला था। अगर न्यूजीलैंड, जिसका डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बड़ा 10वां हिस्सा भी नहीं होगा, जितना दूध वो पैदा करते हैं, वो अगर डंपिंग हो जाता हमारे देश में तो बहुत मुश्किल होती, हमारे दाम कम हो जाते और फिर किसानों को वो सारी अर्थव्यवस्था जो बनी डेयरी के विकास की जो बनी वो नहीं बन पाती। मुझे याद है मालती बहन, जिनका हमने सम्मान किया था, मानसा के पास की हैं, तो उन्होंने एक गाय और एक बछड़ा था उनके पास जब उन्होंने जिंदगी शुरू की थी, और सबसे ज्यादा दूध बेचने वाली महिला डेयरी किसानों में से वो एक हैं। कैसे संभव हो पाया? एक गरीब किसान एक गाय और बछड़े से शुरू करता है जिंदगी को। उनके पति थोड़े अपंग हैं, तो उनके बच्चे जो हैं पुलिस में हैं, अलग अलग अच्छी नौकरी में हैं, अच्छा पढ़ाया उन्होंने सबको। मुझे उनका नमन करने में बहुत आदर भाव महसूस होता है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी कौशल से, अपनी मेहनत से जीवन परिवर्तन किया अपना, और एक मिसाल कायम की। उनके पास पूरे देश से बहनें और भाई आते हैं सीखने के लिए। तो ये ऐसे कितने सारे परिवारों का कायाकल्प हुआ है इस आंदोलन की वजह से। और ये एक क्रांति सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और औद्योगिक भी है, और खेती की तो है ही। धन्यवाद साहब। सोढ़ी साहब आपकी ओर रुख करेंगे, मगर रुकना पड़ेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, उसके बाद सीधे आएंगे आपके पास। रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, બ્રેક બાદ પુનઃ આ ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે। सोढ़ी साहब, सीधा रुख करूंगा आपकी ओर। बात जो कही गुप्ता साहब ने, उसके साथ थोड़ी एक छोटी सी बात मेरी भी जुड़ती है। एक समय था जब मेरे मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने डॉक्टर राम प्रसाद अनेजा और माइक के साथ काम किया था, और वो रिपोर्ट में चाय साथी जो सोया मिल्क बनना था, 1 रुपया लीटर बेचना था, और सुगम श्रीखंड की 2 प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट किया था। और मौका भी था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बोर्ड के साथ जुड़ने का। कुरियन साहब को मैंने प्रॉमिस भी दिया था, मगर शायद गुजरात सरकार ने कुछ और निर्णय किया था, इसीलिए ये सेवा यज्ञ में मैं नहीं जुड़ पाया। आज भी मुझे उसका अफसोस है। नॉर्थ गुजरात की बात की गुप्ता साहब ने, एक बहुत सही बात है जिसका मैं साक्षी रहा हूं। ये जो आपका दूध उत्पादन और कलेक्शन का पूरा तंत्र है उत्तर गुजरात में, चाहे साबरकांठा लो, चाहे बनासकांठा लो, चाहे मेहसाणा लो, चाहे पाटन लो, ऐसी कोई बड़ी उद्योग नहीं थी। आज भी उतनी बड़ी उद्योग तो आज भी नहीं है। अगर उत्तर गुजरात में ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की हैसियत से अंतिम छोर तक, एक गरीब की झोंपड़ी तक अगर रोटी पहुंचाने का काम किसी ने किया है, या उनके बच्चों को कहीं ना कहीं मदद करने का काम किया है, तो वो आप लोगों ने किया है। और उसके लिए मैं मानता हूं कि पूरा उत्तर गुजरात आपका ऋणी रहेगा। उत्तर गुजरात ने भी आपसे प्रेरणा लेकर शायद बड़ी से बड़ी डेयरी जो एशिया की एक जमाने में दूध सागर थी, अभी बनास डेयरी बोल रही है कि हम बड़े हैं, मगर आपस में दूध उत्पादन की हरीफाई में उत्तर गुजरात ने भी, आपने जो भी एफर्ट किया उसका एक अच्छा सा जवाब दिया है। गुप्ता साहब ने बात कही, उसके साथ मैं पूर्णतः सहमत हूं कि दलाया और कुरियन साहब से लेकर आज तक जो ब्यूरोक्रेसी या जो एक्सपर्ट विंग रही है आपकी व्यवस्था की, वो अकबंद रही है। योग्य प्रकार के लोग आए,
योग्य इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था और उनको एक तरह से ये पूरी बात में दीक्षित भी किया गया कि जैसे गुप्ता साहब ने बोला कि दूध अमूल से कोई आता है तो उसकी एक कमिटमेंट ही अलग होती है। तो ये भी आपके वहां जहां तक प्रोफेशनल कैडर का सवाल है, मैं मानता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि आप भी करीब 40 साल से इसके साथ जुड़े हैं, तो आपने भी बहुत अच्छा प्रदान किया है। और कुरियन साहब ने, अमृताबेन ने, दलाया ने वगैरह ने जो रास्ता तय किया था, वही रास्ते पे चल के आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या होगा ये सब आप जो कर रहे हैं आज, जो जिस तरह की व्यवस्था फैली है और जिस तरह की बातें आज सुनने में आ रही है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर एक समय में हमारे लिए इट वाज ए मैटर ऑफ प्राइड, कोऑपरेटिव बैंक हो, कोऑपरेटिव डेयरी हो, ये एक कमनसीबी रही कि तेल की व्यवस्था में, खाद्य तेल की व्यवस्था में एनडीडीबी ने कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रयत्न किया था। रीजन से उसके क्यों नहीं चला इसकी चर्चा अभी नहीं करनी है, फिर कभी करेंगे। मगर ये जो अभी जो कोऑपरेटिव लीडरशिप जो आ रही है, ये आप जैसे जो लोग हैं, शायद आज कुरियन साहब होते तो मैं मानता हूं कि ये जिस तरह की लीडरशिप हम देख रहे हैं उनको काफी जल्दी से रास्ता दिखा दिया होता उन्होंने। तो क्या मानते हैं आप कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसकी भविष्य क्या है? क्या एग्जीक्यूटिव ही उसको चला पाएंगे, या अभी जो जिस तरह की नेतृत्व आ रही है, जिस तरह की इलेक्शन पद्धति है, जिस तरह के हस्तक्षेप हो रहे हैं, इनकी वजह को देखते हुए आपको लगता है ये व्यवस्था जो कुरियन साहब ने पीछे छोड़ी थी, जो आपके पूर्वजों ने पीछे छोड़ी थी, त्रिभुवन दास वगैरह ने, जिसकी कल्पना सरदार साहब ने की थी, क्या वो व्यवस्था ज्यादा आगे बढ़ पाएगी या उसमें सेंध लगना शुरू हो गया है? व्यास साहब धन्यवाद। पहले तो मैं आपको जीएसटीवी को धन्यवाद दूंगा कि आज के प्रक्षेप में जहां आत्मनिर्भरता और ये जो कॉन्फ्लिक्ट फार्म लॉ पे चल रहे हो उस प्रक्षेप में आपने ये परिचर्चा रखी, जिसमें जो अमूल का मॉडल जो है, गुजरात का अपना मॉडल है, उसको आपने आगे किया है। आपने जो अमूल की हिस्ट्री बताई, प्रोफेसर गुप्ता माननीय जी, मैं उनके साथ उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता हूं जब भी जाते हैं। उन्होंने काफी हमारे अमूल के बारे में, अमूल के प्रोफेशनल्स के बारे में, अमूल की मार्केटिंग पॉलिसी के बारे में अप्रिशिएट किया। अभी आ जाइए लीडरशिप। देखिए, अमूल की अगर किसी को बोला जाए ना कि सक्सेस होने का रीजन क्या है, तो मैं बोलूंगा लीडरशिप। और लीडरशिप क्या? फ्यूजन ऑफ दो टाइप की लीडरशिप। एक सेल्फलेस डेडिकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप, राइट, त्रिभुवन दास पटेल से लेके आपने मोती काका सबके नाम दिए, और जो आज की लीडरशिप है। और दूसरी तरफ वेरी कमिटेड प्रोफेशनल लीडरशिप, डॉक्टर वर्गीस कुरियन यूएसए से मास्टर सर किया है, आनंद जैसे छोटे से गांव में आके 1949 में रहे और आए थे। आपने बोला 6 महीने के लिए, 63 साल तक, आपके अंतिम दिन तक रहे। देखिए, इन दोनों का फ्यूजन से ये इंस्टीट्यूशन आज तक बढ़ा है। और आप जो बोल रहे हैं कि आज का, तो मैं बताऊं, दिन में दिन अगर आप देखें, अमूल कल से सुदृढ़ होता जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको तो आंकड़ों से ज्यादा पता चलेगा। 10 साल पहले आपने बताया हमारा 8,000 करोड़ था, आज अमूल पिछले साल 52,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर, भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी और फूड कंपनी बन गई है। और हमारा अगर पिछले 10 साल की ग्रोथ रेट देखें तो 14 से 15% आ रही है, जबकि एवरेज बेस्ट ऑफ मल्टीनेशनल, बेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट की ग्रोथ रेट एवरेज एफएमसीजी 7 से 8 है, तो उससे डबल है। और ये देखिए, जो डबल लीडरशिप आई, ये लीडरशिप से, अब मैनेजमेंट से आई। प्रोफेसर गुप्ता साहब ने बताया कि, और आपने भी बताया कि हम जो प्रोफेशनल, अगर मैंने 38 साल 39 साल दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही आगे। ये देखिए, बोर्ड ने जो ट्रस्ट दिखाया, जो फेथ दिखाया। मैं आपको बताऊं, मैं जब बॉम्बे, दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, इकोनॉमिक टाइम, वहां लोग बोलते हैं कि
आपके किसानों की संस्था में है तो बहुत मुश्किल होगा प्रोफेशनल। मैंने कहा प्रोफेशनल की जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो ट्रस्ट प्रोफेशनल्स को किसानों की संस्था में मिलती है, किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट में नहीं मिलती। मेरे बोर्ड पे 19 बोर्ड मेंबर हैं, 18 डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हर 5 साल में इलेक्शन में, जैसे भारत में लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, मंडी में इलेक्शन होता है, उसमें से इलेक्ट होके आते हैं, मंडली से लेके संघ तक आते हैं, संघ से वो चेयरमैन अगर इलेक्ट होंगे तो फेडरेशन, फिर पूरा इलेक्शन होता है, पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है। और ये जो 18 फार्मर्स मेंबर हैं, आप किसी बोर्ड मीटिंग में जाते हैं तो देख के इतना सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो जितने रिस्पेक्ट और ट्रस्ट प्रोफेशनल उनकी डिसीजन मेकिंग पे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम नाम लेते हैं उसके, आप रोज पढ़ते होंगे, हर 3 साल 4 साल का वो सीओ एमडी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो डिमांड ऐसे रहते। ये जो कंसिस्टेंसी अमूल की लीडरशिप में है, बोथ प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण ही अमूल दूसरी इंडस्ट्री से डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। अभी कुछ अपवाद होते हैं, प्रोफेसर गुप्ता ने बोला, आपने बोला, देखिए ये डेमोक्रेसी में हर तरह के लोग, क्रिटिसिज्म भी होगा, फेवर भी होगा, पर ये सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है डेमोक्रेसी। किसान वोट दे के, अगर कोई अच्छा डिलीवर नहीं करेगा, चुन के आ गया है, तो अगली बार किसान उसको निकाल देंगे। ये देखिए, एक अमूली कोऑपरेटिव संघ है जिसमें गुजरात सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। आप भारत के किसी कोऑपरेटिव में चले जाइए, वहां का पहली बात तो जो एमडी होगा वो वहां की सरकार ने करती है, ना कि बोर्ड। दूसरा, वहां पे जो मेंबर्स आते हैं, आधा बोर्ड तो सरकार नॉमिनेट करती है, पर यहाँ पे सब चुन के आते हैं। मैं नहीं मानती कि पॉलिटिक्स सब जगह है, आज हम देख ही रहे पूरे, और होने भी चाहिए। देखिए, जब कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन होगा, वहां आमने सामने दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये सरकारी तंत्र बन गया, अगर कोई किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करे, कोई डिबेट नहीं करे, कोई मीडिया में आके अपनी मन की बात खुली ना रख सके, तो फिर ये सहकारी लोगों की संस्था नहीं है। और मैं मानता हूं व्यास साहब, जो आज पूरे वर्ल्ड में जो अमूल के मॉडल को रेप्लिकेट की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपने काफी डेटा दिया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले आत्मनिर्भरता की बात की, अभी चल रहा है ये फॉर्म बल्कि जिसमें किसानों को फ्री मार्केट की फ्रीडम देगी, उसके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है, कुछ करेक्ट भी है, कुछ इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बताऊंगा कि देखिए, मिड 70s तक भारत में सिर्फ 20 मिलियन मीट्रिक टन था दूध का प्रोडक्शन, और 110 मिलीग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पादन था, और आज कितना है? 190 मिलियन मीट्रिक टन। और ये कैसे हुआ? अमूल मॉडल का रेप्लिकेशन हुआ, जो व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन और तिरुमलदास पटेल के गाइडेंस में उन्होंने चालू किया। मिड 70s में भारत का दूध का उत्पादन यूएसए से 1/3 और यूरोप से 1/8 था। आज हम यूएसए से डबल है, और जो हमारी ग्रोथ रेट है यूएसए से 5 गुना है। तो देखिए, अगर भारत का जो मॉडल जो चल रहा है, हाँ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हम अभी भारत में नहीं चल रहा, पूरे वर्ल्ड के लिए डेयरी बनते जाए, तो आपको ऐसे रुकाव बहुत आएंगे। पर देखिए, ये सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है, जहां पे डेमोक्रेसी होगी, सेल्फ करेक्शन होगा ही होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आप हमारी लीडरशिप पे और हमारे बोर्ड के ऊपर, जो नियामक मंडल है, जो प्रोफेशनल्स को इंडिपेंडेंस और रिस्पेक्ट देता है, आप किसी और संस्था में, किसी और कमर्शियल संस्था में देखने को नहीं मिले। नहीं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपके साथ सोढ़ी साहब। मुझे आपके बोर्ड में जो आज चल रहा है, वो पुण्य प्रताप अभी तक कुरियन साहब का और अमृता बहन का आज तक जीवित है सर। और बाकी की बात रही दूध संघों की, मैं जाऊंगा अब हमारे महेश भाई पटेल के पास। सर जी, मैं सिद्धपुर से आता था तो कभी कभी रुकता था मोती भाई चौधरी के पास, वो मेरे बहुत अच्छे बुजुर्ग फ्रेंड रहे। विठल भाई पटेल वो भी रहे, दलबा भाई को जानने का भी मुझे सौभाग्य मिला, अमित चंद भाई को जानने का भी मुझे सौभाग्य मिला।
आधा कप चाय आती थी। मैं कभी उनको कभी जोक करता था कि ये बूढ़े लोग तुम इकट्ठे होके एक इतने दूध सागर पे बैठे और इतना आधा कप चाय पिलाते हो। तो उन लोगों की जो बात थी, मुझे बोलते थे, साहेब आ કોઈ વિધવા બેન છાણ મૂતર ઉચકીને પોતાના બાળકો મોટા કરે છે, એનું આ દૂધ છે, એમાં અમે તો ટ્રસ્ટી છીએ. મારે મહેશભાઈ તમને સીધો પ્રશ્ન પૂછવો છે. જે ગલબાભાઈની પેઢી હતી, જે મોતીભાઈ ચૌધરીની પેઢી હતી, જે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલની પેઢી હતી, જે અમીચંદભાઈની પેઢી હતી, એ પેઢી આજે ડેરીનું સંચાલન કરે છે, ખરી પહેલી વાત. અને બીજું કે જે પ્રકારે ઇલેક્શનો થાય છે સહકારી સંઘોના અને ડેરીના, એમાં સારો માણસ હવે ડેરીમાં આવે એવી શક્યતા આપ જુઓ છો ખરા? આપનો પ્રશ્ન અને કદાચ એ શક્યતા હોત તો આપણે પણ રાજીનામું નહીં આપ્યું હોત. વડીલોએ ચિંધેલા માર્ગે શું આજે આ ડેરીઓ ચાલી રહી છે કે નહીં? સાહેબ, આ વડીલોનો પાયો એટલો મજબૂત છે કે એમના પાયામાં ગમે તેવો નાનો મોટો સડો આવે તો એને સહન કરી અને પણ આગળ વધવાની તાકાત છે. ચોક્કસ સમયના વહેણ સાથે નાની મોટી કોન્ટ્રોવર્સીઓ આવે છે, પણ આ ચેલેન્જીસ લાઈફ સાથે જોડાયેલી છે. અને લોકશાહીમાં આપણે જોઈએ તો આ એક ન બદલી શકાય એવી બાબત છે. પણ સહકારી પ્રવૃત્તિનો પાયો એટલો મજબૂત છે. અને આપે હમણાં જ વાત કરી કે જ્યારે ચા પીતા ત્યારે વડવાઓ એક ચિંતા કરતા કે આ વિધવા અને ગરીબ બહેનના પશુનું દૂધ છે. માત્ર દૂધ નહીં, હું ત્યાં સુધી કહીશ કે આજે અમે ચિંતા કરીએ છીએ કે આ ગરીબ અને વિધવા બહેનોએ જે મહેનત કરી અને આ દૂધ મોકલ્યું છે, એના નાણાં એને વધુમાં વધુ મળે અને અમારા દ્વારા ક્યાંક આ નાની મોટી મુશ્કેલી અથવા તો ભૂલ ન થઈ જાય એવા પ્રયત્નો અત્યારે તો અમે કરી રહ્યા છીએ. આવતા સમયમાં આપણે એનું ટાઇટલ જ ખૂબ સરસ આપ્યું છે કે ડેરી ઉદ્યોગની આવતીકાલ. પણ હવે આવતીકાલ કરતા વર્તમાનમાં જીવવું વધારે સારું. અને વર્તમાનમાં આ પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છીએ કે આ વડીલોએ આપેલા માર્ગે ડેરી ઉદ્યોગને વધુ ને વધુ આગળ વિકસાવી અને ખેતી સાથે જોડાયેલા આ માત્ર પૂરક વ્યવસાયને પૂરક ન બની રહે, પણ એ સાચા અર્થમાં બેકબોન બની રહે. યુવા વર્ગ એને મુખ્ય વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારતો થાય અને એને રોકેલા નાણાં ઉદ્યોગોની સામે એક પશુપાલનના વ્યવસાયને પણ ઓછા નાણાં નથી મળતા એ દિશામાં કાર્યાન્વિત થાય એવા અમારા પ્રયત્નો તો છે જ. નાની મોટી હર્ડલો આવશે, આ હર્ડલોને પાર કરવાની શક્તિ પણ અત્યારે પંચ ત્યાં પરમેશ્વર. અને અમૂલની વાત આવે ત્યારે અમૂલ મિલ્ક યુનિયન સાચા અર્થમાં સભાસદો જોડાયેલા રહે એવા અમે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. પર્ટિક્યુલરલી મારી વાત કરું તો મેં ઘણી વાર જાહેરમાં કીધું છે અને આજે પણ કહું છું કે જો આ સહકારી પ્રવૃત્તિ એના માલિકો માત્ર ને માત્ર એના સભાસદો છે. અન્ય વ્યક્તિઓ, અન્ય લોકો કે જેને આ વ્યવસાય પ્રત્યે માહિતગાર નથી, ભૂમિગત વાસ્તવિકતાથી વાકેફ નથી, એવા લોકો માત્ર પોતાના બિનજરૂરી વિવાદો આ સંસ્થાઓમાં નાખવાના બંધ કરી દે તો આ સાચા માલિકો જે પાયાના સભાસદો છે એને આપણે ચોક્કસ ન્યાય આપી શકીશું એવી મને ચોક્કસ શ્રદ્ધા છે. આપણે છેલ્લા સમયથી જોઈએ કેન્દ્ર સરકારે પણ અમને એટલે દૂધના વ્યવસાયને, આપ તો એક અર્થતંત્રના ખૂબ વિશારદ છો,
आवाज नहीं आ रही उनकी। પણ ગત બજેટ થી પશુપાલન અંગે આગવું બજેટ ફાળવ્યું છે, જેના કારણે પશુપાલકોમાં પણ એક આગવો વિશ્વાસ પેદા થશે. એને પશુપાલનના વ્યવસાય માટે પશુઓની રાખવાની વ્યવસ્થા હોય, એના ઇન્સ્યોરન્સની વ્યવસ્થા હોય, એના માટેના ચાપ કટર જેવા આધુનિક સાધનોની વ્યવસ્થા હોય, અથવા તો એની પાસે નાણાં હોય અને વ્યાજ ન ભરી શકે તો વ્યાજ સહાયની વાત હોય. આ તમામ કંઈક બાબતોએ મહેશભાઈ કંઈક તકલીફ લાગે છે, તમારો અવાજ વ્યવસ્થિત આવતો નથી. તમારા આશાવાદને આવકારું છું, પણ એ આશાવાદને અમૂલનો પરફોર્મન્સ ચોક્કસ ટેકો આપે છે. અમૂલ હજુ પણ એ જાળવી રહ્યું છે, પણ જે એના સદસ્યો છે ત્યાં મોટા મોટા પાયે ક્યાંક બનાવટી ઘીનું કૌભાંડ થાય, ક્યાંક ખાણદાણ વેચવાનું કૌભાંડ થાય, ક્યાંક ચૂંટણી ટાઈમે બેલોટ બોક્સીસ બદલાઈ જાય એવું કૌભાંડ થાય. આ કોઈ સારી નિશાની નથી. યુ નો ધ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ ધીસ ઇઝ અ પ્રેસ્ટીજ. આ ગુજરાતનું એક ગૌરવ છે. અમૂલ છે એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે, અને એ ગૌરવને ખંડિત કરવાના મોટા પાયે જે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને છાવરનાર જે છે એ લોકો ક્યારે પણ જો ભીષ્મ પિતામહે દ્રૌપદીનું જ્યારે વસ્ત્રાહરણ થતું હતું ત્યારે હુંકારો કર્યો હતો મહાભારતના થાત. દ્રોણાચાર્ય જો ખાલી એક હાંકોટો કર્યો હોત તો મહાભારત ના થાત. આજે જે સજ્જન માણસો છે ચૂપ બેઠા છે, અને the bad currency drives the good currency out of circulation. That is what is happening. આજે સહકારી મંડળીઓમાં દૂધ ભરીને જેના ઘેર ઢોર ના હોય એ મેમ્બર થઈને ડિરેક્ટર તરીકે ચૂંટાય છે. આપણે આ બધી વાતોની સામે શાહમૃગી નીતિ ક્યાં સુધી અપનાવીશું? સવાલ ગુજરાતની જે ઇજ્જત આબરૂ છે, ગુજરાતનો જે પ્રેસ્ટીજ છે, જેની પાછળ ડોક્ટર કુરિયનથી માંડીને ડોક્ટર સોઢી સુધીના અનેકનો પરિશ્રમ છે, એને આપણે સહકારિતાના નામે, થર્ડ ગ્રેડ લીડરશિપના નામે કૌભાંડો કરીને, બનાવટી લોકોને દૂધ ભરાવીને મેમ્બરો કરીને આપણે બોર્ડમાં મોકલીશું અને એમના થકી વહીવટ ચલાવીશું ને પછી સહકાર ખાતું એ બધા ઉપર સંચાલનનું કામ કરશે. સાહેબ, there is not everything is not well with the cooperative milk sector. Let me tell you, you will remember me after few years. આ નાની મોટી તરડ નથી મહેશભાઈ. તરડ તો હવે એવડું મોટું બોગદાનું રૂપ લઈ લીધું છે એને કે પાકિસ્તાનની સરહદમાંથી બોગદું પાડીને આતંકવાદીઓ આપણી બાજુ આવે એમ આ આતંકવાદીઓ ડેરી સેક્ટરમાં ઘૂસ્યા છે. આપણે કાળજી રાખવી પડશે ભાઈ, અને એની પહેલી શરૂઆત એ થાય છે કે તમે રોગનો સ્વીકાર કરો કે હા આ રોગ છે. તો આ લોકો મહેનત તો કરે જ છે. Dr. Sodhi and company, they are professionals. They are giving best of their life to you. What is the use if it is going this way? એટલે આપણે આ મહેશભાઈ વાત સમજવી પડશે. તમે તો બહુ સજ્જન માણસ છો, અને I started my first job with the last ICS chief secretary of the state, Mr. Lalit Dalal. એમણે મને એવું શીખવાડ્યું છે કે to be a gentleman is a disqualification for an administrator. There is a time when we don't have gentlemen administrators in the dairy sector or cooperative sector. જે મેનેજિંગ ડિરેક્ટરો છે એમને આપણે વધારે પાવરફુલ કરવા પડશે. ડોક્ટર સોઢી જેવાની અમરેલા નીચે એમને મૂકવા પડશે. અને આ જે કહેવાતા રાજકારણીઓ છે જે માત્ર ને માત્ર મલાઈ ખાવા ખાતર આવે છે એમને આનાથી દૂર નહીં રાખીએ તો આ બનાસ ડેરી, આ સાબર ડેરી, આ દૂધસાગર ડેરી નો મૃત્યુઘંટ વગાડીને આ લોકો છોડશે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું निर्माण થશે. गुप्ता साहब, आपकी ओर रुख करूंगा मैं. सोढ़ी साहब ने काफी अच्छी बात की. आप तो इस सेक्टर को काफी अच्छी तरह देखते हैं. क्या इससे और भी आज 14-15% एवरेज ग्रोथ रेट अच्छी बात है, सबसे बड़ी एफएमसीजी है, हमारे गौरव की बात है. अब आगे क्या? क्योंकि व्हेन यू रीच द टॉप द ओनली वे इज दैट यू कम डाउन. तो आप नीचे नहीं आए, उसके लिए आपके ख्याल से क्या क्या करना चाहिए इस सेक्टर को?
कहते रहे, अंत तक 1000 करोड़ की डेयरी थी, लेकिन जो सादगी से वो जिए, मैं आज भी उनसे प्रेरणा मुझे मिलती है। तो मतलब कि डेयरी सेक्टर में ऐसा नेतृत्व है था जो जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक गांधीवादी जो परंपरा थी, सादगी की, सहजता की, ईमानदारी की, उसको बड़े बड़े सच्चाई के साथ जिया है। तो आपने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता वाजिब है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में 4-5 बातें मेरे दिमाग में आती हैं, कभी कभी सोची से बात करता हूँ कि एक तो ये है कि हमें जो यंग जनरेशन है डेयरी सेक्टर में, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स के जो बच्चे हैं, किसानों के बच्चे जो हैं, उनके अंदर स्टार्टअप मूवमेंट को लाने के लिए, उनके अंदर एक नए उद्यमी प्रभाव पैदा करने के लिए, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करने के लिए, जिसका काम जो काम अभी कोई कर नहीं रहा विशेषता, तो मुझे लगता है कि एक काम है कि उनके बच्चों को आगे इस क्षेत्र में वो खाली गाय का दूध निकालने तक सीमित नहीं रखेंगे अपनी अपेक्षाओं को, उनको और भी काम करना पड़ेगा। तो एक अलग ढांचा बनाना पड़ेगा जिसमें हमें एक कोऑपरेटिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बनाना पड़ेगा, एक कोऑपरेटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, जैसे ये कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर है ही, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का कोऑपरेटिव बने और वो किसानों के बच्चे उसमें आगे आए, बच्चे और बच्चियां दोनों। एक तो काम मुझे ये लगता है। दूसरा, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके जो दूध अलग अलग क्षेत्रों में खास विशेषता है, वो विशेषता करके हम अलग तरह की ब्रांडिंग कर सकते हैं। कच्छ में अगर मिनरल ज्यादा हैं तो वहाँ के दूध को अलग तरीके से ब्रांड किया जाए। नॉर्थ गुजरात में क्योंकि बारिश कम होती है तो वहाँ पे शायद संभावना है कि वहाँ के दूध में पौष्टिक तत्व शायद ज्यादा होंगे, बाकी क्षेत्रों से जहाँ पर की बारिश ज्यादा होती है, जमीन के तत्व काफी नीचे मिल चुके हैं, नीचे जा चुके हैं। तो जो एक्सटेंसिव डेयरी है वहाँ के जो अभी मुझे मालूम है, आपने सुना भी होगा शायद केस किया, अगर मैंने तो किया है, चौधरी जी ने ऊँट के दूध की चॉकलेट बनाई, उन्होंने भेड़ और बकरी के दूध को भी आगे लाने की कोशिश की है, उसका चीज बनाने के लिए मदद की है। तो एक नई क्रांति आने की संभावना है जिसमें बाकी भी जो दूध के पशु हैं उनके समाज को, उनके वर्गों को, उनके गाँव को, उनके किसानों को भी इसमें लाने की जो कोशिश हो रही है, मैं चाहूंगा कि वो कोशिश और आगे बढ़े। तीसरी बात ये भी है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल हैं, उनके अंदर थोड़ा विज्ञान और तकनीक का जो थोड़ा सा कमी रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो मैं कोई कहेंगे, सोरी साहब कहेंगे आप सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे क्यों डाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास की जो त्रिभुवन दास फाउंडेशन जो है, कम से कम उनके जरिए तो हम इस काम को कर ही सकते हैं। अगर वो डेयरी स्वयं ना करना चाहे तो उस फाउंडेशन के जरिए जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा उनका विज्ञान का हर स्कूल में एक लैब हो जहाँ पर बच्चे प्रयोग करें। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर इस तरह की क्रांति हो। जी धन्यवाद। सोनी साहब, फाइनल क्वेश्चन टू यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक अमूल ठीक से काम कर रहा है, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से नई प्रोडक्ट्स ला रहा है, संशोधन कर रहा है, तब तक ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें कभी सैचुरेशन नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से 2% मार्केट तो हर साल बढ़ता है हमारा, और हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएंगे 2025 में। तो आप जब तक ये संशोधनों में लगे रहोगे, ये नीचे जो भी गड़बड़ होती है उसमें कहीं ना कहीं आप इनको बचा लोगे। मगर आपको क्या लगता है आने वाले समय में अमूल की जो आज से 10 years फ्रॉम नाउ आपकी विजन क्या है अमूल ब्रांड की? अमूल ब्रांड की विजन, जैसे मैंने आपको बोला, पिछले साल 52,000 करोड़ था, भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी है जी। अगले 10 साल तो से पहले तो मैं 5 साल की बात करता हूँ। हमारा जो नियामक मंडल बोर्ड ने जो हमें टारगेट दिया है 1 लाख करोड़ का दिया है, और अभी 2 साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी नई चॉकलेट फैक्ट्री का उद्घाटन करने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा जो अमूल टीम इतना अच्छा काम करी है कि विश्व की पहली 5 डेयरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में है, भारत की नहीं विश्व की। तो मैं आपको व्यासक बताऊंगा, आज 2013-14 में अमूल का नंबर पूरे विश्व में 18 था, पिछले साल बढ़ के 8 पे आ गए हैं। और जिस हिसाब से हम दर साल 14% प्रगति कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहता कि हम
जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अमूल टीम को टारगेट दिया है, हम वो नहीं अचीव कर पाएंगे। और देखिए, आप कुछ भी बोले, देखिए मैं आप पे डिबेट नहीं करूंगा, आपके चैनल के पर्सनल हो सकते हैं, लीडरशिप पे कुछ पे, मैं फिर आपको बोलूंगा, अपवाद होते हैं, आप बोलते हैं मिलावट होती है, इतनी बड़ी भारत की संस्था है, कहीं मिलावट होती है, पकड़ भी तो लेते हैं और उसके प्रति एक्शन भी होते हैं। अगर कोई छोटी करप्शन होती है पकड़ भी तो, देखिए अब ये कॉर्पोरेटिव क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, छोटी सी भी बात होगी खुल के बाहर आ जाएगी। अगर यही अमूल प्राइवेट संस्था होती, कोई कॉर्पोरेट होता, कोई मल्टीनेशनल होता, बोर्ड में क्या हो रहा है, संस्था के अंदर क्या होता है, आप मीडिया वालों को बिल्कुल पता नहीं चलता। नहीं, सही बात, क्योंकि हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो हम सबके सामने खुले हैं, तो आप हमारा पूरा डाइसेक्शन करके, पूरा एक्सरे करके पब्लिक को बता सकते हैं। पर अल्टीमेटली जैसे आपने बोला, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी डेटा बताती है हमारा फ्यूचर। आज अगर 74 साल से दिन ब दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात के खेरूट की संस्था जो 36 लाख इसके मालिक है, हमको कोई डाउट होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर गुजरात वासी को ये बहुत बड़ा ये प्रेस्टीज की और प्राइड का मामला है कि पूरा विश्व गुजरात की और गुजरात की संस्था की बात करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी कृषि समाज अमूल की बात करते हैं। सोडी साहब, समय कम है, इसीलिए मैं आपको क्षमा याचना के साथ रोकना चाह रहा हूं। हमें हमारे डेयरी क्षेत्र पे नाज है, मगर मैं सिविल इंजीनियर हूं। जब बांध टूटने की नौबत आती है तो पहले एक छोटी सी दरार पड़ती है, उसके बाद बांध टूटती है, और आपके बांध में दरारें नहीं, बड़े बड़े फिसर्स पड़ चुके हैं। हम जो गलत चीजों को अगर नहीं रोकेंगे, आज मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जमीनी हकीकतों की बात कर रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ये आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उसके घर पे कभी गाय न भैंस उसने देखी नहीं है, और उसका दूध भरा जाता है। he fraudulently he is made the member, he or she contest the election, आ जाते हैं। ये चीजों को नहीं हमें डिफेंड करना चाहिए। लार्जर इज द सिस्टम, लार्जर आर द लेयर्स ऑफ इनएफिशिएंसी, वो हेरोल्ड जिनिन का स्लोगन है। तो मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि आप इससे भी अच्छा काम करो। और हमारी चिंता है कि ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है वो हम देखते हैं, आप ऊपर से देखते हैं, हम तो आम आदमियों के साथ खड़े होकर देखते हैं। इसलिए थोड़ी हमारी चिंता हमने व्यक्त की है। अगर आपको ठीक लगे तो इसके लिए चिंता करना, नहीं तो फिर तो काल जो है, काल सबको ठीक कर देता है। इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड। तो काफी मजा आया आपके साथ चर्चा करने में। आप तीनों हमारे निष्णात पधारे, हमारे प्रोफेसर साहब अनिल गुप्ता साहब, डॉक्टर सोडी, आप और महेश भाई हमारे दोस्त हैं। एक ऐसे इंसानियत है जो यू कैन से इज अ डाउनराइट ऑनेस्ट पर्सन। वो इनके बारे में किसी आदमी को कहीं भी उनके कपड़े पे कोई दाग नहीं लगा है। तो हमारा सद्भाग्य है कि आज हमें ऐसी पैनल मिली जो जानकार भी है, निष्पक्ष भी है, और अपने आप में एक ऐसी अहमियत और काबिलियत रखती है जो इस विषय पे बोलने के लिए काबिल भी है। सो धन्यवाद आप तीनों का। गुजरात समाचार के दर्शकों के लिए आप उपस्थित हुए, आपने समय दिया, और आगे चल के हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ज्ञान का लाभ लेते रहेंगे। यही प्रार्थना के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। दर्शक मित्रों, મળીશું આવતીકાલે। બહુ સરસ વિષય છે આવતીકાલનો, જ્યોતિષ ઉપર છે। જ્યોતિષ સાચું, જ્યોતિષ ખોટું, જ્યોતિષમાં શું જોવાય, શું ના જોવાય, કેટલાય આપણે ઘણી બધી જાતના પૂર્વગ્રહો, ઘણી બધી જાતની ગેરમાન્યતાઓ વગેરેથી પીડાતા હોઈએ છે, ત્યારે જ્યોતિષ એ હવે યુનિવર્સિટીઓમાં પણ ભણાવાય છે। એટલે અંધશ્રદ્ધાના વિષય તરીકે નહીં, પણ ટેકનિકલ વિષય તરીકે જ્યોતિષશાસ્ત્રના બે નિષ્ણાતો સાથે આપણે આવતીકાલ ચર્ચા કરીશું। તમે હાજર રહેવાનું ભૂલતા નહીં। ધન્યવાદ। શુભરાત્રી, શબ્બા ખૈર।